Welcome to PMDC online lecture room. Dear students, today our topic learning behavior. Major concept, definition of learning behavior, characteristics, type of learning behavior, habituation, imprinting, classical conditioning, operant learning, instant learning, and assignment. These are the major concepts. So first of all, we discuss about learning behavior to define it. Those behavior which can adapt by organism due to observation, judgment, knowledge, skills, training, practice, and experience is called learning behavior. Explanation: learning behavior directly depend upon experience in life as well as the development and evolution of nervous system. The more complex learning behavior is developed in higher animal while poorly developed in lower animal. Each individual starts its life in a clean state. With the passage of time, the animal acquire new skills and knowledge through error and trial or by observation of other individuals. सो लर्निंग बिहेवियर वो बिहेवियर है जो ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, जजमेंट के ज़रिए, किसी तालीम यानी नॉलेज के ज़रिए, इल्म हासिल करने के ज़रिए कोई स्किल हासिल करे, ट्रेनिंग हासिल करे, प्रैक्टिस करे और उसके नतीजे में जो लर्निंग एडाप्ट होती है, दीज आर कॉल्ड लर्निंग बिहेवियर. So characteristic of learning behavior, following common characters: non-heritable, acquired through observation and experience; extrinsic, absent in animal raised in isolation from others; permutable, sequence may change over time; adaptable, capable of modification to changing condition; progressive, subject to improvement or refinement through practice. So these are the characteristic of learning behavior. Non-heritable होता है, extrinsic होता है, permutable ये अडॉप्ट भी होता है और progressive होता है. So these are the characteristic of learning. So type of learning behavior. First one, habituation. It is the simple form of learning in which the animal stop responding to the external stimuli or response to repeated the stimuli is called habituation. Explanation: during habituation, the sensory system may stop further sending the signals to the brain in response to continuously present or often repeated stimulus. Habituation allows the animal's nervous system to focus on the stimuli that signals the presence of food, imminent or real danger rather than waste time or energy on stimuli that are irrelevant to the animal's survival and reproduction. Habituation ये सिंपल फॉर्म ऑफ लर्निंग है जो एक्सटर्नल स्टिमुली की रिस्पांस की वजह से या रिपीटेड ऑफ द स्टिमुली की वजह से लर्न होता है और ये सिंपल फॉर्मेशन है. दीज आर कॉल्ड हैबिचुएशन जो एक्सटर्नल रिस्पांस की वजह से कोई ऑर्गेनिज्म सीख जाता है. सो एग्जांपल ऑफ लर्निंग ऑफ द हैबिचुएशन यानी जो लर्निंग हैबिचुएशन जो होती है लर्निंग बिहेवियर है. सो लॉस ऑफ रिस्पांस टू द स्टिमुलस, क्राई वुल्फ, affect decrease in the response repeated occurrence of the stimulus, enable animals to disregard unimportant stimuli, for example falling leaves on the triggering fear response in baby birds, or for example feeling your claws rubs on your legs. So these are the habituation जो रिस्पांस के नतीजे में कोई ऑर्गेनिज्म सीख जाता है. या अगर आप कमरे में दाखिल होते हैं तो अगर घोंसले में किसी परिंदे के बच्चे हैं, ये बच्चे आप देख रहे हैं, तो जब आप दरवाज़ा खोलते हैं
तो ये आवाज़ निकालते हैं। उस रिस्पांस को बार बार ये रिपीट करने के बाद फिर क्या होते हैं, सीख जाते हैं कि ये सिचुएशन हमारे काने यानी जब उसकी माँ आती तो मखसूस आवाज़ के नतीजे में वो फिर रिस्पांस देते हैं। इस तरह जब दरवाजे से जो रिस्पांस इसके नतीजे में आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बग़ैर किसी सोचे समझे वो आवाज़ निकालते, लेकिन जब वो रिस्पांस बार बार आती है तो वो लर्न जाते हैं कि दीज आर दी नॉट सिचुएशन फॉर दी फूड, ये फूड के लिए नहीं है और ना हमारी वालिदैन की ये रिस्पांस है। तो ये इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता सीख। So second one, imprinting, the learning in which the animal form and association with another animals or object in the environment during the sensitive period of development is called imprinting. Explanation: imprinting behavior is both innate and learned behavior. Imprinting is an amazing example of genetic and environmental influence on animal behavior. It involves the brief sensitive period called critical period. Sensitive period is limited development phase when certain behavior can be learned. For example, in 1930, Conrad Lorenz showed the principal imprinting stimuli on grey legs geese. तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल गीस पे ये एक्सपेरिमेंट की है। इम्प्रिंटिंग में अक्सर फॉलोवर होते हैं और फिर वो जजमेंट के बाद जब किसी चीज़ को देख लेते तो उसको फॉलो करते हैं और फिर उसके नतीजे में वो लर्निंग करते हैं। तो कॉनर लॉरेंस ने ये गीस पे एक्सपेरिमेंट की है। जब फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने लॉरेंस को देखा तो वो उसके पीछे चलने लगे। ये लॉरेंस है और ये गीस है। फर्स्ट ऑफ तो दे कैन फॉलो दी लॉरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल के इब्तिदा में जब वो देख देते हैं कि ये लॉरेंस किस तरफ जा रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिर्फ इस सिचुएशन के नतीजे में लॉरेंस को देख लेते हैं और फिर वो लॉरेंस को फॉलो करते हैं। दीज आर कॉल्ड। थर्ड वन, classical conditioning. The condition respond to the natural stimulus after having been paired repeatedly within an unconditioning stimulus or the stimulus that evoke a response naturally or automatically is called classical conditioning. Example: this type of learning was first studied by Russian psychologist Pavlov in 1891 on dogs. He used as a food an unconditioned stimulus and metronome, जिसको बेल कहा जाता है, was chosen as a natural stimulus. See on pictures. पिक्चर की तरफ आते हैं और इससे हम इस पलों की एक्सपेरिमेंट को सीख जाते हैं। तो फर्स्ट वन, बिफोर कंडीशनिंग अनकंडीशन स्टिमुलस, जिसमें फूड रखा गया, रिस्पांस आता है यानी डॉग अनकंडीशन रिस्पांस के नतीजे में उसके मुंह से स्लाइवेशन शुरू हो जाती है। सो दीज आर दी अनकंडीशन स्टिमुलस के फूड को देखने के बाद स्लाइवेशन शुरू हो जाती है। सेकेंड, बिफोर कंडीशन यानी पल्वो सेकेंड वन एक्सपेरिमेंट यानी कंडीशन के नतीजे में कर लेते हैं और बेल को इस्तेमाल करते हैं। बेल यानी नेचुरल स्टिमुलस है तो रिस्पांस, नो रिस्पांस बाय द डॉग एंड नो स्लाइवेशन, यानी नो कंडीशन रिस्पांस, कोई रिस्पांस नहीं आता डॉग की तरफ से और कोई स्लाइवेशन इसके मुंह से नहीं होती। ड्यूरिंग कंडीशन यानी बेल प्लस फूड, वो फूड को भी रखते हैं और बेल भी बजाते हैं। रिस्पांस क्या होता है, स्लाइवेशन शुरू हो जाती है। द डॉग रिस्पांस टू द सच कंडीशन, अनकंडीशन रिस्पांस यानी स्लाइवेशन उसके मुंह से शुरू हो जाती है जब वो फूड को अकॉर्डिंग विद बेल देख लेते हैं। आफ्टर कंडीशन यानी फोर्थ वाले एक्सपेरिमेंट में वो क्या कर लेता है कि कंडीशन सिर्फ बेल को इस्तेमाल कर लेते हैं। आप रिपीटेड दिस कंडीशन, इस कंडीशन को बार बार रिपीट करने के बाद कि इस बेल के साथ ही फूड आता है तो फिर रिस्पांस डॉग की तरफ से क्या आता है कि स्लाइवेशन शुरू हो जाती है, कंडीशन रिस्पांस। तो ये स्लाइवेशन कि वो समझ जाता है कि ये बेल के साथ ही फूड आता है तो वो बेल को बजने के बाद और बेल को देखने के बाद
उसके मुंह से सलाइवेशन शुरू हो जाती है। तो इस तरह जो लर्निंग होती है ड्यू टू कंडीशन, दीज आर कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग एंड दीज आर दी टाइप ऑफ लर्निंग। अब आते हैं फोर्थ वन, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, इसको हम ऑपरेंट लर्निंग कहते हैं। द लर्निंग consequence that can foster adjustment of organism to certain situation or help to explain the acquisition and maintenance of more complex voluntary behavior that can possess the organism to perform behavior that produce certain rewarding effect on the environment is called operant learning. Operant learning कि organism सिचुएशन और कम्प्लेक्स वॉलंटरी बिहेवियर के नतीजे में और फिर सर्टन रिवार्डिंग के नतीजे में जब कोई ऑर्गेनिज्म सीख जाता है तो दीज आर कॉल्ड ऑपरेंट लर्निंग। एक्सप्लेनेशन हम इसकी करते हैं कि दिस बिहेवियर कैन ऑपरेट ऑन द एनवायरनमेंट टू प्रोड्यूस रिवार्डिंग consequence. The organism acquire responses or develop skills that lead to reinforcement that increase the frequency of behavior that precede it. It depends on the animal's ability to remember the outcome of past events and modify future behavior for the good consequence or bad consequence. इस लर्निंग बिहेवियर में जब कोई ऑर्गेनिज्म सीख जाता है तो पास्ट इवेंट्स, जो पहले गुजरे हुए आउटकम्स होते हैं, जो पहले गुजरे हुए सिचुएशन होती है, उसको एडाप्ट करते हुए वो जब फॉर दी बेटरनेस या फॉर दी बेडनेस की कंडीशन क्या होगा, क्या गुड कंडीशन मेरे लिए पैदा होगा या बेड कंडीशन, तो वो इस सिचुएशन को बार बार रिपीट करने के बाद फिर वो क्या करते हैं, बैड और गुड सिचुएशन को जाहिर करने की कोशिश करते हैं। इस तरह जो ऑर्गेनिज्म सीख जाता है दीज आर कॉल्ड ऑपरेंट लर्निंग। एग्जाम्पल हम देते हैं कि बीफर स्किनर एक्सपेरिमेंट, द BF Skinner work on the rat in a cumulative recorder box, जिसको हम स्किनर बॉक्स कहते हैं। When the rat is put initial in Skinner box, it does not know that it has to push the lever to get food. When the rat touched the lever by accident, it received the pellet of dried food. The rat did not know this form of outset and only triggered feeding when the rat touched the lever by accident. But after scoring several such lucky strikes, it appeared to have learned the connection. यह स्किनर बॉक्स से इसमें रेट को रखा गया, यहाँ पे लीवर इसके अंदर मौजूद है और इस लीवर की कनेक्शन फूड के साथ है। जब लीवर को खींच लिया जाता है तो फूड यहाँ से होता हुआ अंदर आ जाता है। तो अचानक से जब रेट ने इस लीवर पे इसके पांव लग गए तो ये लीवर को लगने के टच करने के बाद ड्राई फूड अंदर की तरफ आया और उन्होंने आसानी के साथ वो ड्राई फूड क्या टेकअप कर लिया और खा लिया। अब जब उन्होंने एक्सीडेंटली बार बार इस लीवर को टच करने के बाद वो बार बार ये फूड आता था, तो ये बार बार स्ट्राइक करने के बाद, बार बार इसको टच करने के बाद फिर ये चूहा सीख जाता है कि इसकी कनेक्शन फूड के साथ है, लिहाजा फिर वो उसको दबा के वो फूड यहाँ पे इसके करीब आ जाता है। तो इस तरह दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड, ये स्किनर बॉक्स के अंदर जो आप चूहा देखे और ये लीवर को दबाने के बाद फिर फूड उसकी तरफ आ जाता है। सो दीज आर कॉल्ड ऑपरेंट। लास्ट वन, इनसाइड लर्निंग, द टाइप ऑफ लर्निंग that uses reasons especially to form conclusion, inference or judgment to solve the problem is called inside learning. यानी वो एक कंक्लूजन, वो जजमेंट जिसके नतीजे में प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और बार बार प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बार बार एक्सपेरिमेंटल चीज की जाती है। सो दीज आर कॉल्ड इनसाइड लर्निंग। एक्सप्लेनेशन, in the type of problem solving outcome not based on the actual experience like trial and error, but the trial and error learning depend on mentality base. The solution is learned
Suddenly, when a person is in a problem for a period of time and suddenly learn the way to solve the problem, तो वो अगर उसको लिए कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो बेटर वे की सिचुएशन, बेटर कंडीशन इख्तियार करने की कोशिश करता है ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. सो learning. Example, Kohler did experiment on chimpanzee to explain the inside learning in 1920. उन्होंने एक्सपेरिमेंट की है चैंपियंजी पे, ये देख रहे हैं चैंपियंजी इस पिक्चर के अंदर, और कोहलर ने 1920 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया है कि इनसाइड लर्निंग किस तरह की जाती है, कि बग़ैर कंडीशन के, बग़ैर एक्सपीरियंस, बग़ैर किसी सिचुएशन के किस तरह ये इनसाइड, इसको हम इनेट बिहेवियर भी कह सकते हैं, बट ये सिचुएशन अंदरूनी किफ़ियात की वजह से फिर इंसान सीख जाता है. सो दीज आर कॉल्ड इनसाइड लर्निंग बिहेवियर. तो ये कोहलर ने चैंपियंजी पे एक्सपेरिमेंट की है. तो कोहलर ने क्या किया कि केलों का एक गुच्छा बांध लिया ऊपर और फिर कमरे के अंदर चैंपियंजी को रखा और ये सामने ऊपर उसके सामने केलों को बांध लिया है धागे के साथ. अब ये चैंपियंजी कोशिश करता है कि हाउ कैन गेट दीज बनानास, किस तरह इस केलों को हासिल किया जाए. अब वो इनसाइड लर्निंग करते हैं, उसके सामने बॉक्स भी नजर आते हैं, लेकिन बार बार इसको हासिल करने के बाद जब वो कोशिश करते हैं तो वो सोचने लगता कि क्या किया जाए. अब वो बॉक्स उठा के, एक बॉक्स उठा लिया, फिर उस पर चढ़े, फिर भी नहीं पहुंचा, फिर दूसरा बॉक्स उठा के इस पे रख देता है, फिर भी नहीं पहुंचा. इस तरह बार बार ये लर्निंग करके कि अगर ये बॉक्स एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए और फिर उस पर चढ़कर इस केलों को हासिल किया जाता है. इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता फिर इनसाइड लर्निंग कर लेता है और इस तरह वो कोशिश करने के बाद इस केलों को हासिल कर लेता है. तो दीज आर कॉल्ड इनसाइड लर्निंग, के कोई नहीं बताता कि आपने ये करना है, बल्कि अंदरूनी कैफियत की वजह से सीख. So these are the inside learning behavior. So we will get assignment for you. Write answer of the following question. First one question है differentiate between the imprinting and inside learning. Second question, define the following term habituation and operant learning. Question number 3, explain the classical conditioning with example. So these are the question for you and you can write answer of the following these question. So best of luck all of you. Allah Hafiz. Thanks.